So, hello everybody. I, Shreya Katyal, welcome you all once again to Some Sunshine. It's time for our very talented and inspiring guest for the day, Mr. Dinesh Mohan, who's a super cool actor, model, and a very charming personality, full of positive vibrations, I must say. So, hello, sir. Welcome to Some Sunshine today. Hello, thank you so much for the lovely introduction. I'm so happy to be here and talking to you. Likewise. So we all were eagerly excited and waiting to hear from your side. And we want to know कि आपका जो ये सफर है, जो ये जर्नी रही है, ये कैसी रही है, क्या आपके सेटबैक्स थे और किस तरीके से आपने बाउंस बैक किया और एक्टिंग की फील्ड में अल्टीमेटली आप कैसे लैंड अप करे. Now today we can see that you are passionately doing a lot of work. So Yes. what is the backstory behind it? Yeah, अभी मैं सबके सामने I stand in front of everybody as this model and actor, and everybody knows me, and people are sending me a lot of love and respect and attention. But it wasn't always like this. I had a very tough life before becoming a model and an actor. Tough in the sense that due to some personal negative circumstances और मेरे अपने medical issues की वजह से my life had totally derailed, because when we are young, we all have dreams about life and we plan our lives accordingly. Okay, this will happen, I'll do this and I'll do that. But in my case, I, unfortunately became a helpless audience to the drama of my own life when it started getting derailed and it all started getting out of my hands. And whatever plans I had, they lay around me in a big heap of dust. And that put me in a lot of depression because people of my age, my colleagues and my friends and my relatives, cousins and all, were doing so well in life, and here I was, who was always told that you're very intelligent, and I was a little good looking when I was young. So to see all that going waste, and I had degrees, I had the best of education, and it all went waste. So this pushed me into a lot of depression, which resulted in me putting on a lot of weight, because I come from a Punjabi family. I was frustrated, but वो food से एक जो attachment है वो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, and सब लोगों का साथ छूट गया, सब कुछ अलग हो गया, मगर खाने के साथ जो मेरा साथ है, कनेक्शन है, वो वो, गहरा हो गया. हाँ, वो और गहरा हो गया। खुशी में भी रहा वो और गम में भी रहा वो, और अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को दुखी करने के लिए, हर मूड को एक्सप्रेस करने के लिए मैं खाने को यूज करने लग गया। एंड द फूड हैबिट्स वेरी सून बिकेम an eating disorder, and the weight started piling up, and I was depressed already, and it led to a lot of medical issues. So like this, continuing from 2004 or maybe a little earlier to 2009, I had completely lost it. I had become bedridden. I could not walk, I could not stand on my feet, and life had become a total hell. I would like to ask one thing from your side that जैसे अभी तो आपने अपना पूरा वो brief share कर दिया कि you were जी, strong headed, you had dreams in your mind and those dreams could not be fulfilled and achieved and that led to depression, right? yeah, And then you gained weight and you just like lost hold of your own life. So now जी. my question to you here is that what were those exact dreams which you aspired for? What were you wishing for? Like See, which really broke you. yeah, of course, everybody wishes to be successful in life as far as money is concerned. But Right. I'm very different from my childhood. We had money. I come from a good family, but my aspiration was to travel the world, to have a very light, friendly kind of interaction with people, not give much importance to what people are thinking, and जो एक वो डिक्टेट्स होते हैं ना किसी भी रिलेशनशिप के कि एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको ये करना है, आपको ये करना है। I had not seen all these things in my own family, so I wasn't cut out for a lot of pressure in life, कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये क्यों बोला, वो क्यों किया। Mm-hmm. Very free kind of soul, happy go lucky.
who had only one dream in life, that okay, I have a very good job, very good salary, now I want to travel, and Right. make a lot of friends, go around, have fun, laugh. And I had good habits. I don't smoke, I don't drink. वो मैं पहले भी नहीं करता था, and I'm a pure vegetarian also. But life has this strange thing that once आपको अगर कोई पहाड़ी के ऊपर से धक्का दे दे, तो आप फिर बिल्कुल नीचे आके ही रुकते हो, वो बीच Very में true. कहीं पे वो बहुत इम्पॉसिबल. नाउ इट डिपेंड्स ऑन अदर्स कि वो आपको कितनी ऊंची पहाड़ी से धक्का दे रहे हैं. True, and especially when you are a soul like that who just believes in खुद जी और औरों को भी जीने दो वाला types, then there are no grays in life. Either it's a black or a white. Either you attach to somebody or you totally disconnect. So वो या middle way नहीं होता. तो आई वाज सच अ सिंपल सोल के मुझे जो भी हाथ पकड़ के ले गया कि आओ वहां चलते हैं, और वहां ले जाके छोड़ दिया, और फिर खुद ही फाइट करते रहो, खुद ही सरवाइव करो. सो दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी, सो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई, एंड आई कंप्लीटली लॉस्ट माय कंट्रोल ओवर लाइफ. तो जॉब गया, जिस शहर में मैं था वो गया, हेल्थ गई, जो थोड़ा बहुत पैसा कमाया था वो गया, और अपना कुछ भी बचा नहीं था. सो ऐसी स्टेज पे मैंने अपने आप को पाया. एंड देन somehow I started getting frustrated कि नहीं, मुझे ठीक करना है सब, ऐसे नहीं रहना मुझे, और Right. ठीक है, नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आई विल डाई. एंड वो तो ऑलरेडी लाइफ जो है वो बिल्कुल डेथ जैसी ही थी. सो देन आई डिसाइडेड कि ओके चलो एक बार डाइट कंट्रोल करके देखते हैं, वेट लॉस करके देखते हैं, शायद मेडिकल इश्यूज में आसानी हो जाए. आई मे बी बेटर एबल टू फाइट द मेडिकल इश्यूज. So then, I would like to know now. My next question to you is that when you gained weight and जी. when you decided that I want to bounce back, I want to reduce. So what were all those, mantras did you choose, and what was your routine so that the people out there who are already obese can just like learn from your journey and आपको किस तरीके के challenges, क्योंकि weight gain करना बहुत आसान होता है, खाते रहो और स्पेशली फूडीज के लिए, बट देन लूज करना इज अ टास्क. सो आपने क्या वो रूटीन फॉलो किया एंड क्या पैरामीटर्स अपने माइंड में, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस आप लाए, क्योंकि इट स्टार्ट्स फ्रॉम माइंड आल्सो एंड देन इट कम्स टू बॉडी. सो मैं चाहूंगी आप सब चीजें शेयर करें, टिप्स दें Yes, हमें. because I've been telling everybody जो भी मेरे से पूछते हैं that the best gym is in your mind. It's not outside. And सबसे पहले आपको अपने माइंड को उस पॉइंट पे लाना पड़ता है कि ओके ये मेरे अंदर कमी है, और जी. इस कमी की वजह से आई एम स्पॉइलिंग माय लाइफ. सो आई हैड आई पिन पॉइंटेड इन माई सेल्फ कि मैं कहाँ कहाँ पे गलतियां कर रहा हूँ, विच इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज एवरीबडी थिंक्स दैट वी आर परफेक्ट, चाहे आप बीमार हो या जो भी हो. मुझे ये तो सो यू हैव समझ टू आ एक्सेप्ट फर्स्ट, यू हैव टू एक्सेप्ट कि कोई कमी है, तभी तो आप बिल- चेंज करेंगे. हाँ, वहीं से फिर आप राइट. स्टार्टिंग क्रिएट कर सकते हो. और जी. वन थिंग हैड आई हैड अंडरस्टूड बाय दैट टाइम दैट कुछ भी हो जीवन में, सब आपके साथ खड़े हो, बट अगर हेल्थ नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है. सो राइट. आई मुझे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मेरे पास आज के दिन कुछ भी नहीं है, लेट मी रीगेन माई हेल्थ एटलीस्ट, लेट राइट. मी हैव रिलेशन विद माई सेल्फ, सो दैट आई कैन देन क्रिएट अ लाइफ अगेन, अगर भगवान ने मौका दिया तो. सो एंड आई ऑल्सो अंडरस्टूड दैट फिटनेस जर्नी जो है आपका, वेट लॉस जो जर्नी है, उसमें डाइट का 80% रोल है और एक्सरसाइज का 20% रोल है. सो मैंने ऐसा नहीं किया कि जिम ज्वाइन कर लिया और वहां जाके हड्डियां तुड़वा ली और फिर घर आके एक परोंठा और एक्स्ट्रा खा लिया और सोचा कि यार मैं पतला नहीं होता. राइट. अब मैं ऑलमोस्ट हैंडीकैप था, तो जिम में जा ही नहीं सकता था इनिशियली बिल्कुल, क्योंकि तो फिर मैंने डाइट के ऊपर फोकस किया. सो आई वेंट टू अ डाइटिशियन. आई सैट डाउन विद माय सिस्टर हु वाज कुकिंग एट दैट टाइम एट माय होम, एंड ओके. वी फुल डाइट प्लान. और टारगेट मैंने रखा था 1 साल का, मगर आई वाज वेरी हैप्पी कि मैंने 8 मंथ्स के अंदर अंदर ही 40 kgs वेट जो है वो लूज कर दिया विद माय डाइट. एंड मैं बिल्कुल भूखा नहीं मरा, मैंने बिल्कुल स्टार्व नहीं किया. आई ऑलवेज यूज टू फील फुल. इट वॉज सच अ होलिस्टिक डाइट, जो मैं हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाता था, बट हेल्दी खाता था, थोड़ी क्वांटिटी में खाता था, और अपने माइंड को जो है एक्टिव रखता था. सो आई वुड लाइक टू टेल एवरीबडी हु इज with weight that the action of
taking a morsel and putting it in your mouth. उसके पीछे जो आपके माइंड में थॉट है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. अगर आप खुशी से खा रहे हो, Exactly. ये खा रहे हो कि हमने हेल्दी रहना है, तो वो अच्छा असर करेगा. अगर आप खुंदक में खा रहे हो, दुख में खा रहे हो, खराब मूड से खा रहे हो, तो वो. एंड सेम गोज विद कुकिंग. यू मस्ट बी नोइंग इट. घर में खाना जो है जिस मूड से बनता है, वो खाने वालों पे वही असर करता है. So Very that, true, very true. So, guys, see, this thing we need to realize that our thoughts, they have a lot of power. I mean, वो yeah, एक ऐसी एनर्जी है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो. अब जैसे कहते हैं कि if you are feeling constantly मैं मोटा हूँ, you can never lose weight. First, you need yeah, to accept your body. You need to बिल्कुल. love your body and then intelligently work as Mr. Dinesh has already worked, and due to his willpower, जो 1 साल का टारगेट था उन्होंने 8 महीने में अचीव कर लिया और कर दिखाया. तो सर यहाँ बिल्कुल. पे कोई आपसे पूछ रहा है कि आई गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू हियर एंड that is like a compliment come question. How come you are so charming at this age? And that is from Neetu ji. She's asking like how come you are so charming at this age, and that is what I also always keep on thinking. That really No, inspires. I don't know about these things at all. I don't give it a thought. My only the best compliment for me. Thank you so much, Neetuji. I totally appreciate it. But the best compliment for me is that if somebody says that you are intelligent, and if somebody says that you are a very nice human being, so I find these compliments to be, looks का क्या है वो. Okay, so हम. इसमें मैंने एक लाइन लिखा था that was that faces automatically shine bright when the soul is treated right. So I suppose you are really loving your soul, you are really being very kind to your soul, and that is why you have a charming face. And I would request everybody, each one of you out there, that please be kind to yourself, because the world might not be kind to you, but you need to have a very loving self talk. Be kind to Correct. yourself. Self value जो है, always keep it very high, because you are the only person who is going to value yourself correctly. So Exactly. इसलिए अपने से रिश्ता जो है वो keep it very healthy, very loving, very kind and very forgiving also. क्योंकि Right. frustration जो है, अब कोई ना कोई गलत काम तो कर ही जाते हैं, मगर वो जो जी. frustration, ये तूने क्या किया, अब तेरा ये होगा, you need to forgive yourself कि ठीक है, I'm a human being, हो गया मेरे से, कोई बात नहीं, next time I'll take care. तो वो forgive Right. करना भी बहुत जरूरी है. जी. जी, तो अर्ज किया है कि थोड़ा सीधा चलाएगा, थोड़ा टेढ़ा घुमाएगा, थोड़ा जी. सीधा चलाएगा, थोड़ा टेढ़ा घुमाएगा, मगर जिस दिल में इज्जत और कद्र है तुम्हारी, खुदा तुम्हें आखिर में उसी दिल के दर तक पहुंचाएगा. So वाह. we would always encounter different kind of people in life, but then you attract the kind of vibrations you are on. So always यस. be positive, and करेक्ट. you will get good people around, good energies. बिल्कुल 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 सही बात है. यस. जी. तो तो सर, अभी आपसे हम लोग ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने बात करी कि एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, एंड दैट रियली हेल्प्स इन एवरीथिंग. एंड वी नो द लॉ ऑफ सीक्रेट आल्सो बाय रोंडा ब्रायन, दैट योर थॉट्स आर बिकमिंग थिंग्स. So I would like to know some kind of, such inspirational incidents in your life where you have just thought of it and you have achieved it. Of course, one of them is related to your weight, which you set a 1 year target and got like accomplished with your efforts in 8 months, with your willpower and thoughts positivity. But are there some more incidents like that? यस, देयर आर. और Some ऐसे, miracle journey? या विद टाइम यू रिकलेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे भूल गई थी, बिकॉज लाइफ एज अ मॉडल एंड एन एक्टर, थोड़ा बहुत सक्सेसफुल एक्टर इज सो बिजी कि आप बहुत ज्यादा सोचने का आपको टाइम नहीं मिलता. मगर अब जब मैं बैठता हूँ कई बार, तो आई डू रिकलेक्ट दैट हाउ दिस जर्नी fell into place. So I remember that when I had become all right and I started watching TV and all that again, I don't know why I told my people that I need to watch fashion TV. You know, Okay. F. I don't know. मुझे किसी ने कहा था कि उसपे बड़े अच्छे मॉडलिंग के प्रोग्राम्स आते हैं, and it's full of beautiful girls and nice places and things like that. So I just wanted that light connection with life. और न्यूज चैनल लगाओ तो उसमें रोना धोना, गाने लगाओ Right. तो उसमें
कई बार गाने आ रहे होते थे, तन्हाई तन्हाई दिल के रास्ते पे वो Yeah. ठोकर Being a खाई। journalist, sir, I would like to say here that I do not watch news at all. I mean, यस I just need, I don't switch on my TV in the entire day, and I don't need newspapers, just the facts, the current सो affairs and something आई to keep टोल्ड माई updated. या आई टोल्ड माई पीपल कि मैं न्यूज़पेपर बंद कर रहा हूँ, मैं न्यूज़पेपर भी नहीं जी. ले जाता, एंड आई नीड टीवी जिसके ऊपर FTV आता हो। एंड आई स्टार्टेड Hmm. वॉचिंग, एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड, यू नो, माय मदर, माय ब्रदर, एवरीबडी यूज्ड टू से कि क्या ये क्या है, मतलब आई मीन इसमें क्या कंटेंट है इस चैनल में। तो आई यूज्ड टू से आई True. डोंट नो, ये चलता रहता है Hmm. बैकग्राउंड, आई फील गुड, बीच में कभी देख लो एंड ऑल दैट। आई never realized that this desire to be a model was building up subconsciously inside me. So one of Hmm. my was visiting me from Canada. ये बात है शायद 2013 की या 14 की, जब मैंने वेट लॉस किया था। एंड शी आस्क्ड मी कि अब तुम फिट लगते हो इतने, तो तुम क्या करना चाहते हो आगे। तो आई Hmm. टोल्ड हर, मैं ना ये चाहता हूँ कि अब तो वक्त निकल गया, बट जब मैं नेक्स्ट बर्थ हो ना मेरा, तो यार मैं ना बहुत अच्छा सा एक मॉडल बन के पैदा हूँ, सो दैट आई Hmm. कैन हैव दैट लाइट लाइफ, यू नो, हंसना खेलना मॉडलिंग। दो आई नाउ रियलाइज कि इट्स अ वेरी टफ लाइफ, मगर तब मुझे ऐसा लगता था। Hard एंड work is everywhere. I think like passion, आपका passion profession बन जाए तो I don't think work remains like work. It's a या cakewalk. आई थिंक यूनिवर्स में कोई बैठा सुन रहा था, और उसने कहा कि जी. कोई बात, एज है या नहीं है, पर एक बार हम्म. इसको मॉडल बना देंगे। सो नहीं, रीबर्थ तो हो ही गया ना. आफ्टर दैट वाज वन फेज ऑफ योर लाइफ जिसमें आप एक अलग इंसान थे, और फिर जी, आपने पूरा अपना माइंडसेट चेंज करा एंड यू गॉट तो होल्ड ऑफ योरसेल्फ. सो रीबर्थ ही है काइंड ऑफ. या आई टेल यू हाउ थिंग्स हैपन इन फैमिलीज, यू नो, हमारे रिलेटिव्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। जी. आई जी. रिमेम्बर जी. मैं GQ मैगजीन भी लेने लग गया था, जेंटलमैन्स क्वार्टरली, विच इज अ फैशन बेस्ड, फैशन फॉर मेन मैगजीन, एंड इट्स एन इंटरनेशनल मैगजीन ऑफ रिनाउन। सो आई वाज हम्म. रीडिंग दैट, eldest brother, you know, he walked in and he said, क्या दिमाग खराब हो गया तुम, ये GQ मैगजीन। so you know, अब when I have featured in GQ मैगजीन, मेरा शूट उसमें हम्म. आ चुकी हैं, तो मैंने उनको वो कटिंग WhatsApp पे भेजी, एंड यू नो I can imagine. I love doing these kind of things. So same here. I mean, we resonate on this. They think when people try to bury you down, prove them that you are a seed. तो उनको खुद ही दिख जाएगा. Don't know why in India we attach, you know, this negative judgment about modeling and, you know, हम्म. fashion, कि ये आदमियों के लिए ठीक नहीं, ये औरतों के लिए ठीक नहीं, ये बच्चों के लिए ठीक Right. नहीं। Every fashion is, you know, you can make your own rules and you can Exactly. take it on Set your your own own। boundaries. जो आपको लगता है आपके रूल्स के हिसाब से नहीं है, उसको मत कीजिए आप, बट नेवर कॉम्प्रोमाइज। सो आई नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड इन दिस प्रोफेशन, यू नो, आई हैव ऑलवेज डन थिंग्स ऑन माय ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। और बड़े बड़े शूट्स में भी, इन द True. बिगेस्ट ऑफ, इफ आई डोंट लाइक समथिंग, आई एम वेरी वोकल। इफ दे ब्रांड मी कि हाँ ये ही इज थ्रोइंग अ टेंट्रम, आई टेल देम ओके, आई एम थ्रोइंग अ टेंट्रम, बट आई नीड थिंग्स अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे अकेले को कैमरे के आगे जाके फेस करना है और रिजल्ट देना है। सो मुझे True. कैमरे से पीछे जो है सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए। सो दिस Otherwise, इज also, like if we go on somebody's else terms in our life, what I feel is that then we can never be happy, because at the end of the day, you have to, face yourself also. तो आपको करेक्ट। लगेगा कि इसने कहा था, मैंने इसकी वजह से कर लिया, क्यों किया, तो फिर किया जी, ही क्यों. So it's एग्जैक्टली। very, very, या very important to be frank, and people might not like that thing at that time, but definitely, definitely they're going to respect you later for being करेक्ट, frank and original. करेक्ट, बिल्कुल सही बात So है। I really like appreciate that quality, and that is also one of the reason of a charming face, because हम लोग जो भी करते हैं खुल के करते हैं. There's no a scope for hypocrisy or diplomacy in anything या like that. स्टेज ऑफ माय लाइफ और इस प्रोफेशन में श्रेया, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। इवन अगर एक भी इंसान आके कह दे कि दिनेश ने हमसे काम मांगा, तो आई लीव दिस प्रोफेशन फॉर एवर। Hmm. और जो भी मिला है वो अपनी मेहनत और अपनी रेपुटेशन और अपने टैलेंट के बेसिस पे मिला है। लोग खुद आए हैं मेरे पास, द बिगेस्ट ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर्स हैव कॉल्ड मी। जितनी मैंने मूवीज की हैं, भारत, सांड की आंख, और मैं नाम ले रहा हूँ, अगर ये ना होता तो मैं छुपाता।
Darbar, Happy Sardar, Anna Prambil World Cup, Colors. These are the movies I have done. High end यारियां पंजाबी. एक भी पिक्चर में मैंने खुद अपना प्रोफाइल नहीं भेजा. Everybody contacted me themselves, and this happened only because I have taken this profession on my terms, not on Right. others' terms. So that So, is the so thing. profession on your terms, and I would like to quote this thing also because intellect is always damn impressive. People Yes, might forget your looks they fade, but the things you know will never go away, and that gives you confidence. I mean, वो correct. हर चीज में होता है. When you have something here, you are already confident But that how you uh, want to lead your life. yeah, but this is इससे बड़ा कुछ नहीं है. very interesting, because when you have good looks, वैसे मुझे नहीं लगता कि मेरी looks अच्छी हैं, but in this, And then you are being so humble about it because हम सबको यहाँ पे लगता है. I'm going to tell you something very interesting because when you have good looks and you walk in a room or या आप किसी film set पे गए I तो think सबसे you are reversing with age. तो डायरेक्टर सबसे पहले उनको देख के लगता है कि कोई मेल बार्बी डॉल है कि कपड़े हैं फेस है फिगर है बट आई प्रूव्ड विद टाइम एंड बहुत होता था ये शुरू में मेरे साथ पीपल यूज्ड टू से कि यार इतना गुड लुकिंग आदमी एक्टिंग तो कर ही नहीं पाएगा बिल्कुल ये तो मॉडल है और मॉडल ही रहेगा हमेशा बट आई प्रूव हम्म. ऑल रॉन्ग मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है आप मुझे 100 पेजेस का डायलॉग दे दीजिए 15 मिनट दे दीजिए द एंटायर इंडस्ट्री नोज के मैं एक वर्ड भी जो है वो मिस नहीं करूंगा और मुझे अपने डायलॉग्स के अलावा बाकी सब कैरेक्टर्स के डायलॉग्स जो स्क्रिप्ट में होते हैं वो एक लुक से देखने में ही याद हो जाते हैं और उन इमोशंस को मैं अंडरस्टैंड कर पाता हूँ बिकॉज आई हैव सीन सो मच इन लाइफ बाय Right. दिस Experience situations. Right. So यहाँ पे मैं सबको एक दर्शकों को भी एक नॉलेज का पीस देना चाहूंगी दैट आईक्यू जो होता है जैसे आपने भी अपनी जर्नी में शेयर करा दैट पहले से you were a person who was always a knowledge seeker and intelligent in that regard and you wanted to study a lot, right? So in this case I would like to tell everybody that IQ जो होता है हमारा intelligence question वो हमें by birth मिलता है. That cannot करेक्ट be manipulated. If somebody has a good learning capacity, that means that वो IQ अच्छा है और वो genetically होता है, by birth होता है. उसमें manipulations नहीं हो सकती है. And EQ जो होता है, emotional quotient, that can be changed depending upon your experiences you get in life, how you channelize yourself after those experiences. तो उसमें manipulations हो सकती है. So you इन had माय probably a very good या IQ, which makes you a good actor as well because EQ तो आपने सिचुएशन बेस्ड आप हर रोल डिफरेंट होता है तो हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप को रिलेट करके. थोड़ा सा क्या है कि इन माय केस व्हाट हैपेंड इज दैट इट वाज अ सेकंड चांस एट प्रूविंग माय सेल्फ इन लाइफ बिकॉज मैं ऑलरेडी फेलियर डिक्लेयर होके और बहुत डाउन चला गया था जिंदगी में सो आई केम विद दिस एक्स्ट्रा एनर्जी कि मुझे ये करके लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल चाहे ये बहुत पॉलिटिकली करेक्ट एग्जांपल नहीं है इन द ईयर आई गेस 1994 में जो फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट होता है उसमें दो कंटेस्टेंट्स ने पार्टिसिपेट किया वन वाज नेम्ड ऐश्वर्या राय एंड द अदर वाज नेम्ड सुष्मिता सेन एंड ऐश्वर्या राय को देख के एंड बाकी सब कंटेस्टेंट्स एंड इवन सुष्मिता सेन जी ने अपनी इंटरव्यू में बोला है दैट शी डिसाइडेड कि मुझे नहीं करना है कि ऐश्वर्या राय है शी इज ब्यूटीफुल शी इज गॉट ब्यूटीफुल आईज ब्यूटीफुल हेयर तो कैसे होगा बट हर मदर टोल्ड हर के नो यू गिव इट अ Right. ट्राई She so was the only one not to step yeah back. and she won the contest she Yeah, did even I've heard this thing that उनके जो gloves भी थे तो उनकी मम्मा ने socks से बनाए थे. सॉक से बनाए थे एंड व्हाई दिस बिकॉज जिन लोगों को ये कहा जाता है ना कि तुम नहीं कर सकते वो वही एक्स्ट्रा करके था. और जिन लोगों को ये होता है ना कि हम तो जीते हुए हैं ऑलरेडी वो लोग हार हम्म. जाते वो एक्स्ट्रा Nothing एफर्ट nothing grows in comfort zone. यस नथिंग ग्रोज इन कंफर्ट जोन सो अब हम अगर हम बच्चों को भी देख लें सर जो घर पे बच्चे ओवर पैम्पर्ड से होते हैं ओवर प्रोटेक्टिव से होते हैं वो हमेशा एंड तक भी अपने पेरेंट्स को ही तंग करते रहते हैं छोटी छोटी बातों के लिए ये हो गया मम्मा वो हो गया इवन दे आर लाइक मैरिड और दे जस्ट लाइक बिकम समटाइम्स ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो दे कॉल देयर पेरेंट्स कि ये हो गया कैसे करे ग्रो ही नहीं कर पाते यहाँ से कभी क्योंकि पेरेंट्स ने चांस नहीं दिया होता.
हाँ, और मैं खुद को जो है ना, जैसे अब शाम हो रही है, सूरज ढल रहा है, और जिंदगी की भी अब, जैसे मैं 62 ईयर्स का हूँ, तो ऑलमोस्ट शाम ही है। तो आई कॉल माई सेल्फ वन ऑफ द सनसेट पीपल। सनसेट पीपल वी ट्राई ऑल दैट हार्डर, कि हाँ, हम जब दुनिया से जा रहे हैं तो एक स्टार ब्लेज जो है हमारा, एक शाइन जो है, वो जाते जाते जो है वो इतनी चमक वाली हो कि वो लोगों की नजर में रह जाए। सो आई ट्राई दैट मच हार्डर देन यंगर पीपल टू बी नोटिस्ड एंड टू बी सक्सेसफुल, एंड सो अपने कंफर्ट जोन से बहुत बाहर चला जाता हूँ हमेशा। मेरे ख्याल से एज इज जस्ट अ नंबर, यूथ इज अ माइंडसेट. I mean, it यस, is nothing related to your, body that you are growing up. If you are young at heart, if you are innocent and full of life, then you are बट always young. entire comparison of young at heart and old, why do we take it as two extremes? These are just Right. progression. Age, everybody is young, बस हमारी एज बढ़ रही है। तो मेरे को ये क्लासिफिकेशन जो है ना ह्यूमन लाइफ की, यंग एंड ओल्ड, वो पसंद नहीं है। सिर्फ दो क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, यंग एंड वेरी यंग, बस। That's true. मेरे केस में दो क्लासिफिकेशन है. एक है यंग, मतलब जो लोग खुल के जीते हैं, और दूसरी डेड, क्योंकि कुछ लोग जिंदा हैं बट फिर भी मतलब पहले ही मर चुके हैं मौत से पहले. सो यस, वो दो क्लासिफिकेशन है मेरी सिर्फ. अगर करेक्ट। आपको कोई टॉक्सिक दिखे, अगर आपको कोई लेथार्जिक दिखे, यार ये क्यों हो रहा है, यार ये कैसे हो रहा है, तो सोच लो कि वो पहले ही ना जिंदा बॉडी है, बट वो सोल खत्म कर चुका है अपना, पहले गिव अप कर चुका लाइफ पे. सो आई जस्ट रन अवे फ्रॉम सच काइंड ऑफ एनर्जीज. राइट, राइट। So that is the thing, and I'm getting beautiful compliments for you over here. अरे और यहाँ पे आपके लिए एक शेर मैं अर्ज करना चाहूंगी, जो जी, है कि like I'm Shaira Shriya, दिल की आवाज. So वाह, I keep on writing a lot of stuff, and शेरो वाह, शायरी is my favorite. Mind power is another concept, जहाँ से ये, जैसे आज मैंने आपके लिए लिखा है, it's okay not to be okay. It's करेक्ट, okay not to be okay, but it's definitely not okay not to be okay again. So ये bounce back करना बहुत जरूरी है. राइट, So this is राइट, a this is करेक्ट, a English version, and हिंदी में मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, अर्ज किया जी, है. जैसे आपने कहा था ना कि अभी मतलब बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं हमारे जो हमें बिलीव नहीं कर पाते उस वक्त, हमारे कंसेप्ट्स में, हमारे आइडियाज में, हमारे ड्रीम्स में. जी, और फ्रेंड्स भी होते हैं, दुनिया भी होती है, क्योंकि उन्होंने वो चीजें नहीं करी होती हैं. उनके नोज जो होते हैं वो सोचते हैं हमारे भी नोज बनने वाले हैं. हाँ। तो उसमें मैंने कुछ अर्ज किया था कि अगर चुप्पी जरूरी है, अगर चुप्पी जरूरी है, चुप रहना है महानता का प्रतीक. क्योंकि हम लोग इस केसेस में जो सेंसिटिव लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम नेगेटिविटी और आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े, लेट देम Okay, स्पीक एंड नॉट आंसर. या, तो अगर चुप्पी जरूरी है, चुप रहना है महानता का प्रतीक, फिर तुम्हारा काम बोलना चाहिए, तभी रहेगा जिंदगी में सब स्थिर और ठीक. राइट। So you have to get back like a phoenix and inspire the people around you and show them, yes, yes, you were correct. I have a tattoo here which says "Live life to its fullest." This is my mantra, Oh, so I keep on and reading this. same here. I have a tattoo over here which says life. Okay, so I keep on inspiring people, but obviously ऐसा होता है कभी कभी हम लोग भी लो फील करते हैं. जी, So बिल्कुल। जब मैं लो फील करती हूँ तो मैं इसको देखती हूँ और अपने आप को रिमाइंड करती हूँ कि मैंने कहा था कि मैं लाइफ हूँ. और लाइफ के 4 एलिमेंट्स हैं इसमें: लव, Oh, लॉयल्टी, दैट इज डॉगीज पॉ, क्राइस्ट का mm, फेथ, एंड पीस का सिंबल. तो जब ये beautiful. 4 एलिमेंट्स आपकी लाइफ में, यू आर कंप्लीट लाइफ एंड वी ऑल आर अ बंडल ऑफ लाइफ, सो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट. मुकेश जी is congratulating you here for your beautiful role in Sand Ki Aankh Uh, Royal of Alwar. Thanks for saying that. God bless you for my most favorite role, because पूरी मूवी में बहुत कम पॉजिटिव कैरेक्टर्स थे, मेल पॉजिटिव Okay. कैरेक्टर्स। सो प्राउड टू बी उनमें से जो सबसे ज्यादा नोटिस होता है फॉर हिज पॉजिटिविटी। तो दैट वाज महाराजा ऑफ अलवर, एंड इट्स अ Mhm. ट्रू स्टोरी, एवरीबॉडी नोज दैट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड मैंने फेसबुक पे ये लिखा भी जब वो मूवी रिलीज हुई, कि अब मैं आराम से रिटायर हो सकता हूँ, बिकॉज इस मूवी को आने वाले सालों में बहुत देखा जाएगा। एंड जब लोग स्क्रीन पे देखेंगे कि यार हु इज दिस हैंडसम पॉजिटिव मैन,
तो कोई ना कोई कहीं से बोल ही देगा कि दिनेश मोहन, सो नाम लिखा। सर दैट इज द ब्यूटी ऑफ एन आर्टिस्ट। मतलब ये फील्ड जो है इतनी चेरिशेबल क्यों है? क्योंकि इंसान चले जाता है बट हमारे जो कंस्ट्रक्टेड कला है हमारी, वो कला यहीं रह गई। कहीं ना एग्जैक्ट, कहीं कोई ना कोई कभी ना कभी देख रहा होगा, तो वो अमर कर जाता है हमें। या एंड दिस दैट इज मेक्स मी, व्हाई आई लव दिस प्रोफेशन। इट मेक्स मी वेरी इमोशनल व्हेन आई रियलाइज कि हाँ, लोग आपको याद रखेंगे, बिकॉज ह्यूमन लाइफ का पर्पस एक बहुत बड़ा ये है कि हमें आने वाली सदियां, आने वाली पीढ़ियां याद करें। हर कोई अंदर से ये चाहता है। सो आई एम हैप्पी एंड थैंकफुल टू द यूनिवर्स कि मुझे याद किया जाएगा। ऑब्वियसली अच्छे कामों के लिए अच्छे लोगों को हमेशा याद करना चाहिए और किया जाता है। मतलब ये कहते हैं ना, द पावर इज इन योर माइंड बिकॉज योर फेरी टेल इज इन योर हैंड्स। यस, करेक्ट, बिल्कुल राइट, बिल्कुल। दैट इज ऑल्सो दिल की आवाज। मतलब मैंने भी अपना लिखना तब स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज 7 years old। सो आई एम वाओ, राइटिंग सिंस देन। और दिल की आवाज का मैं कहती हूँ ये दिल पे लगती है, अब दो तीन आंखों से साल बहती है। जी। 2-3 साल हो गए आपको लिखते हुए? 7 साल की एज से आप लिख ये कमाल। सब। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बट आई थिंक 15-16 साल हो गए हैं हम लिखते हुए। सो दिल की आवाज इज लाइक दिल पे लगती है, आंखों से बहती है और पन्नों पे उतर जाती है, वही दिल की आवाज कहलाती है। सो ऑल द एग्जैक्टली, पेन एंड प्लेजर वर स्पिलिंग ऑन द पेपर जस्ट टू इंस्पायर द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं तो करेक्ट, कोई पढ़ रहा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। So we have a lot of appreciation for your journey, and it's actually indeed very inspiring for people around there जो मतलब छोटी सी बातों से थक जाते हैं, बैठ जाते हैं। गाइस ठीक है, हर एक की लाइफ में एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है, सनसेट्स आते हैं, बट देन यू हैव टू शाइन अगेन फॉर द नेक्स्ट डे। सूरज भी शाम को ढलता है, फिर से आ जाता है अपने काम पे नेक्स्ट डे, तो व्हाई नॉट अस? देयर इज नेवर एन बिल्कुल, एंड। नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप ऑन लाइफ। डोंट लेट योर एग्जैक्टली। ड्रीम डाई, नेवर लेट योर ड्रीम्स डाई। चाहे आपको लगे कि कितने ही अजीब हैं आपके ड्रीम्स, उनको पूरा करने की कोशिश एक बार जरूर कीजिए। जी। सक्सेस सबको मिलती है, किसी को पहले मिलती है, किसी को थोड़ी लेट मिलती है, बट मिलती जरूर है। सो Just, नेवर लेट योर ड्रीम्स डाई, नेवर सेटल, एज सोहर हैज टोल्ड अस। yeah, success is a state of mind. If you are happy with your life, then you are successful. बाहर दैट्स की सक्सेस अल्टीमेट तो आती और जाती रहेगी हमेशा। So if you ट्रू। are happy with life, that is success. जी। सो आज मैं बहुत खुश हुआ एंड आई एम रियली सक्सेसफुल बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी टुडे एंड अ वंडरफुल गेस्ट विद मी एंड really feeling blessed to have these kind of energies. So much Thank more power to you and your good work. ऐसी तरीके से आप अच्छा अच्छा काम करते रहिए, हमें इंस्पायर करते रहिए, और आपको भगवान बहुत सारी सक्सेस दे, दैट मीन्स हैप्पीनेस दे, और God. हमेशा फुलफिल्ड फील करें। मैं God. चाहूंगी कि जाने से पहले आप एक हम सब लोगों के लिए मैसेज दें और एक मंत्रा दें, अच्छा सा मोटिवेशनल। देखिए, मैं मतलब बहुत ज्यादा फिलोसफीज में बिलीव नहीं करता, बिकॉज एवरीबडी आस्क्स मी कि कुछ बोलिए, कुछ बताइए जिससे मोटिवेट हो। आई हैव ओनली माय लाइफ स्टोरी टू टेल एवरीबडी, और उसी को मैं बारी बारी बोलता हूँ। एंड मैंने अपनी लाइफ स्टोरी को एज एन ऑडियंस देखा है कि किस तरह से गिर के उठा हूँ मैं। और माय फेवरेट लाइंस, क्योंकि आप भी पोएट हैं और मैंने अपनी बहुत सी उसमें बोला भी है ये। इट्स एन इंग्लिश पोएम which says that you may write me down in history with your bitter twisted lies. You may trod me in the very dirt. चाहे मतलब आप मुझे मिट्टी में मिला दें, but like dust in a storm I rise. आप मिट्टी पे जितना जोर का पैर मारेंगे, वो मिट्टी उतना ही ऊपर, कई बार भगवान उसको उछाल देता है और वो आपकी आंखों में गिर के फिर आंखों की किरकिरी बन जाती है। तो थोड़ा वेरी ट्रू। सोच के पैर मारिए कि कहीं वो मिट्टी आंधी बन के आपको ही ना। सो ट्राई ट्राई टू बी द स्टॉर्म। डोंट एवर रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स। जो भी सक्सेस आपको मिला है, एक आगे और बढ़ने की जो प्यास है उसको कभी बुझने मत दीजिए। सो आई हैव अचीव्ड अ लॉट इन दिस इंडस्ट्री, थैंक्स टू एवरीबody, बट माय अर्ज like a little young boy to achieve more and more grows every moment, and I push my comfort zone more and more, the borders more and more, to achieve more and more.
तो लगे रहिए हमेशा, कभी गिव अप मत कीजिए, जिंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी, एंड थैंक्स अ लॉट टू द लवली ऑडियंस टू for giving me such nice compliments. God bless everybody. God bless you. थैंक यू सर, नमस्कार, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, हमें इतना इंस्पायर करने के लिए, और हमें एक बार फिर से याद दिलाने के लिए कि जिंदगी में सन सेट होता है तो फिर से सनराइज भी होता है।